have to record this. There may be some people who might not attend this, so they'll be able to see this later. All right, Ayush, sorry to interrupt you. Yeah, so first of all, the thing would be to go through the newspapers. I would suggest that you should read at least one newspaper for half an hour or 45 minutes every day. It could be an Indian Express or the Hindu or whatever newspaper is available to you. So go through it, and you can also, there are certain YouTube channels and some Instagram pages are also there. FinShots, InShots. These are something. There are certain apps which you can also install. A lot of IIMs and other UG colleges, economics club or societies have their own Instagram pages where they post stuffs. The latest trends, the weekly trends, and they explain the concepts in a very interesting manner. We in our club also have a page on this, and we have tried to explain things like GDP, national income, or microeconomics, game theory. These are the things that we have explained it using very Mario characters, Tarak Mehta characters. So we have tried to make economics very innovative and fun in itself. And yeah, you can also follow certain news channels for the daily updates. Sure. We'll do that. Daily updates. I think that's all. And plus, following the materials which you'll shared by the host itself. So yeah, these are the things you can do to enhance your knowledge in economics and Indian economy as in general, in total. Yeah. So guys, Ayush will be sharing. So every Monday, Ayush, are we doing it every Monday? Yeah. So I can send so we also publish it. So basically we publish macro scans, which is basically we write articles, elaborated articles on certain economic events, which are quite recent in nature. And every Monday we send it to the, our batches in IIM Indore. We also publish it in the IIM Indore blog. So I can send you the blog link so that you can directly read from the IIM Indore websites. I can also provide you the previous blogs which we have written, so that you can get the hang of it, that what kind of a content goes into the blog and what kind of work we are doing. So in case you join any of the B schools, be it SPJN or any IIMs or IITs, and you'll get an idea how a particular economics club function or different or any club in general. So you'll get an idea about it as well. Absolutely. Ayush, I'm sure you will get slightly biased when these people go to IIM Indore and they're applying into your club. Though I'll be an alum by then, but definitely if they reach out to me for any kind of help, more than welcome. All right. Tanishq, your view on economy in any other pointer apart from what Ayush mentioned? Yeah, just a second. I think so. I would summarize it pretty well, and since he is from economic club itself, so I cannot explain it any better. So I hope that you guys are listening to him and follow his steps. This is how you appreciate someone. उसने कितने subtle तरीके से उसको appreciate किया. I think this is to learn, and a lot of us learn that skill in MBA. So another pointer for your why MBA, guys. All right. So beautiful. Let's begin with the session tonight. We've discussed about some of the important tips coming in from Ayush. So every Monday, guys, you'll be getting some important links to help you prepare on the economy front. Okay, so that you will be getting in your groups. Just a little update. Yeah. Tanish might have to leave for 10 minutes. I think. No issues. Yeah, no worries. Meanwhile, we'll take over. No issues. Yes, absolutely. So guys, as mentioned by Ayush, every Monday we'll be sharing some important content for all of you to stay updated on the economy front. Now, to begin with, to be honest with you guys, to summarize Indian economy in one session is an uphill task. It's just not doable. So what we'll do is we'll give you an overview of the Indian economy. Okay, we'll give you a good view of how to start understanding the Indian economy from the GDP angle. Okay, so we'll give you some brief idea on the GDP, and then from there on you can take it forward. Okay.
So let's have a look at it. Sagnik is saying, how can we read newspaper of the previous year to get a crux of the economic affairs in the previous year, being not a regular reader? Sagnik, we'll take you through that. Okay. For example, the construct of today's session will help you understand that. Okay. All right. So let's begin. Shall we begin, Ayush? Shall we start? All right. So I guys, wouldn't mind if you guys turn on the cameras. It's not an issue. Yeah. So guys, if it's possible, you can certainly do that. That'd be great. हमें भी अच्छा लगेगा. We'll also feel good कि हम सिर्फ screen से बात नहीं कर रहे हैं. All right. So to begin with, let me give you a quick brief on GDP. Some of you, how many of you from commerce background or economics background? Anyone who's there from commerce or economics background? These guys might know a little. However, people from engineering background and all, they face a lot of issues. I used to face a lot of issues when I was preparing. So let me give you a very, very quick brief of what GDP is. Okay, and obviously you can also share your views on what GDP is. So basically, guys, GDP का मतलब होता है, it is abbreviation for gross domestic product. So what is gross domestic product? Anything and everything that is made inside the confines of your country, okay, your domestic boundaries, is basically converted into money value is GDP. Okay, so GDP is nothing but anything and everything that is made inside the confines of your country. It is made by the residents of India, not made by residents of India, does not matter. But anything and everything that is made inside the confines of your country, that is GDP. Okay, so I hope that is clear to you. So GDP is the gross of domestic product. Okay, so domestic production. Now there is one more term. There are two things that are very, very important in this context. One is nominal GDP versus real GDP. Anyone who knows, you can put in the chat also. So what's a nominal GDP versus a real GDP? So Ayush, what's your understanding? If you can help us a little on nominal versus real. Yeah, so basically, as said by you, the definition of GDP very well. So what we used to do during our UG is that it is just a simple thing. It is a summation of PI into QI, and Q being produced in our domestic country. So summation of PI. So basically the prices of every goods multiplied to the quantity. And I think someone has just answered it. The nominal GDP calculated on basic price is correct. So yeah, nominal GDP is something which is calculated on the current year price, and nominal GDP means they take a base year. Suppose take for example 2010-11 we have taken a base year, and we have calculated the GDP on that price and the quantity produced in this year. So prices in 2010-11 into quantity in 21-22 is your nominal GDP and real GDP, and nominal GDP means the prices of the same year and the quantity produced also in the same year. Absolutely amazing. So guys, जैसे बहुत ही correctly आयुष ने बताया, and I hope अगर आपने economics वाला session देखा था, वहाँ पे सोनाक्षी मैम ने भी आपको बताया होगा इसके बारे में. So nominal versus real, very, very simple. Real GDP में आपका इन्फ्लेशन को हम कट कर देते हैं. सो व्हाट वी डू इज वी सेलेक्ट अ बेस ईयर. फॉर एग्जांपल जैसे 2011-12 है, तो हमने एक बेस ईयर लिया है और उसके प्राइसेस के हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे हैं अगर हमारा जीडीपी, दैट इज कॉल्ड अ रियल जीडीपी. ओके, नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइसेस पे, जैसे आयुष ने बताया. तो ऑब्वियस सी बात है कि नॉमिनल वर्सेस रियल जीडीपी में कौन सा बड़ा होगा? इन एन इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी आपका नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी से बड़ा होगा. ठीक है, बिकॉज इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो आपके करंट प्राइसेस हायर हो जाएंगे, है ना. अब रियल जीडीपी कैलकुलेट क्यों करते हैं? व्हाई डू वी कैलकुलेट रियल जीडीपी एट ऑल? रियल जीडीपी वी कैलकुलेट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन. Okay, if I have to compare, let's say 2017-18 with this year, then we'll not get a right picture because उसके अंदर कुछ इन्फ्लेशन का भी इम्पैक्ट है. तो अगर फॉर एग्जांपल मैं बेस ईयर में कन्वर्ट कर दूं, अगर 2017-18 का जीडीपी भी मैं बेस ईयर में ले लूं 2011-12 में, और इस ईयर का भी जीडीपी में बेस ईयर 2011-12 में ले लूं, तो फिर मेरे को लाइक टू लाइक, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन मिलेगा. सो फॉर द कंपैरिजन पर्पस we primarily use real GDP. Okay. Apart from this, there is one more angle.
That angle is called GDP and GNP. आयुष, GNP के बारे में क्या ख्याल है? So this is what we have studied back in standard 12. So it is called national income and related aggregates. So there are a lot of aggregates which can be measured just by the value of GDP if it is known. So GNP होता है, NNP होता है, NDP होता है, market price पे होता है, factor cost पे होता है. So GDP और GNP में ये फर्क होता है कि when we include NFIA, which is net factor income coming from abroad, तो basically क्या होता है कि there are some portion of income which we receive from abroad. So there must be, अब हमारे एम्बेसी के लोग होते हैं या जो भी बाहर काम कर रहे होते हैं वो जो अर्न करते हैं और whatever they send the money here and whatever payments we are making abroad. So उसको जब we subtracted the net factor coming from abroad and what we are paying to abroad, तो उसका जो एक net value आता है वो उस पे ऐड जाता है और वो GNP में आ जाता है. Brilliant. So आयुष ने जो आपको बताया, I hope this is clear to you. What is GNP? GNP is the gross production by your nationals. Okay, if your nationals are outside the country, okay, outside the country also, if they are creating value, okay, then that value is basically your part of your GNP. Okay, it is not the part of your GDP because GDP is within the confines of your country. Remember, GNP on the other hand is a measure of whatever is being produced by your nationals. Okay, even outside the country. For example, to give you so Ayush talked about remittance. Okay, people who work outside, they send money to the country. Okay, which is counted as remittances. So these remittances, can you guess what was the number for the last financial year? Financial year 21 में remittances का number कितना था? What was जो हमारा जो remittances थे were close to $80 billion in the last financial year. Isn't that an amazing number? Okay, imagine कितना value हमको बाहर से हमारे country में आ रहा है, which is adding value, and from that perspective, if you see, GNP also becomes very, very important. Okay, so I hope this understanding is clear to everyone जिसने basics भी इसके पहले नहीं पढ़ा होगा. I hope GDP, understanding of GDP, GNP, nominal and real is clear to you. Okay guys, because पहला session है हमारा on Indian economy, we will not go into greater details of it. Okay, what we first expect is for you to have a basic understanding of GDP, Indian economy, and how to read some of the charts. Okay, मैं आज आपको कुछ बहुत important charts दिखाने वाला हूँ GDP से related, कैसे उसको read करना है, and how to become self-aware, how to start reading the charts that we'll talk about today. Okay, now see, so how do we calculate GDP? Okay, how do we calculate GDP? Quite an interesting question. So अभी GDP calculate करने के लिए ना तुम्हारे पास 3 तरीके हैं. ठीक है, आयुष ने अपने इस पिछले वाले आंसर में ही बताया था. तो 3 तरीके हैं. एक आपका इनकम मेथड हो गया, बहुत ही सिंपल है. इनकम मेथड क्या है? जितने लोगों ने जो कमाई करी है, ठीक है, जो भी कमाई लोगों ने करी है उसका सम कर दो तो वो हो जाएगा आपका इनकम मेथड. ठीक है. एक्सपेंडिचर क्या है? जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं, चाहे वो आपके गवर्नमेंट लेवल पे हो, इंडिविजुअल लेवल पे हो, कॉर्पोरेट लेवल पे हो, सारे को आप सम कर दो तो आपका एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट हो जाता है. आउटपुट मेथड क्या है? जो भी आपने प्रोड्यूस किया, व्हाटएवर यू प्रोड्यूस्ड, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, product or service, anything, if you just add the value of all of it, that becomes the output method or the production method of calculating GDP. अब इसके अंदर GDP कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एक इक्वेशन है which is basically nothing but the expenditure method. That is the simplest method of calculating. एक सिंपल आप इक्वेशन के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर सकते हो. The expression for an expenditure method is the GDP is given as कितने लोगों ने ये इक्वेशन पहले देखा हुआ है? How many of you have seen this equation in advance? GDP is C plus I plus G plus X minus M. क्या होता है ये? What is C? What is I? What is G? What is X minus M? आप मुझे चैट के अंदर बताइए. ठीक है. So basically guys, GDP is a
is a sum of these parameters. इसके अलावा भी और छोटे छोटे पैरामीटर्स होते हैं, बट मेजरली यही पैरामीटर्स होते हैं. ठीक है, आज हम देखेंगे इंडियन इकोनॉमी में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, पर पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है. सबसे पहले तो सी क्या है? सी आपका कंजम्पशन है. ठीक है, सी आपका प्राइवेट कंजम्पशन हो गया. जितना भी टोटल कंजम्पशन है प्राइवेट, वो सारा आपका सी में आ जाता है. ठीक है, व्हाट इज आई? आई आपका इन्वेस्टमेंट हो गया. ठीक है, ये भी आपका पूरा नेट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट्स मेड इन द इकोनॉमी, वो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा. जी क्या है? जी इज बेसिकली योर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. जैसे यहाँ पे सी कंजम्पशन है. कंजम्पशन क्या है? प्राइवेट एक्सपेंडिचर है ना. मैं जो खर्चा कर रहा हूँ, ठीक है, आप च्यवनप्राश खरीद रहे हो, ठीक है, ये जितना भी एक्सपेंडिचर हो रहा है प्राइवेट वाला, वो आपका सी में आ जाएगा. अब गवर्नमेंट रफाइल खरीद रही है, ठीक है, ये जितने भी गवर्नमेंट वाले एक्सपेंसेस हैं वो आ जाएंगे जी में. ठीक है, तो ये कौन सा मेथड हो गया? ये एक्सपेंडिचर मेथड हो गया, जो हम एक्सपेंड कर रहे हैं. अब आई क्या हो गया? आई इन्वेस्टमेंट्स हो गए. ठीक है, जो टोटल इन्वेस्टमेंट्स हैं. इसके अलावा नेट ऑफ एक्सपोर्ट्स. नेट ऑफ एक्सपोर्ट्स मतलब एक्स बेसिकली हियर मींस एक्सपोर्ट्स, एम बेसिकली हियर मींस इंपोर्ट्स. सो गाइस, दिस is a very simple equation for you to understand GDP or quantify GDP, if you have to. So basically your expenditure method. ठीक है, Chetan is saying why we take expenditure method not others. Chetan, we can take any other method also. Okay, we can take any other method, we can calculate and we will get the same GDP because economy तो same है. आप एक ही इकोनॉमी के लिए इनकम मेथड से कैलकुलेट करो या आउटपुट मेथड से कैलकुलेट करो या एक्सपेंडिचर मेथड से करो, आपका आंसर जीडीपी का सेम ही आने वाला है. एक्सपेंडिचर मेथड से इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सिंपली कैलकुलेट हो जाता है. जो कंपोनेंट्स हैं वो थोड़े से क्लियरली यहाँ पे डिफाइंड हो जाते हैं, है ना. तो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू. ठीक है, आयुष, एनी अदर पॉइंटर्स टू ऐड टू दिस? Yeah, just exactly what you said, that if we can adopt any of the three methods while calculating the GDP. But since you said that it is the most easier, or understanding of the components is easier for you, that's why this is the very first method which will be taught to you if you join a B school. तो ये सबसे पहला method होगा जो GDP by expenditure method, क्योंकि इससे components बहुत clear होते हैं. जो C हो गया वो हमारा expenditure हो गया, I हो गया जो investors का expenditure हो गया, G हो गया government expenditure हो गया, X minus M हो गया net exports. So the components are really clear. जैसे अगर हम लोग इनकम मेथड की बात करते हैं तो वो जैसे ये दिखने को सिंपल लग रहे हैं, बट इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ते जाती है. जैसे इनकम के भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, वो तुम्हें देखना पड़ेगा. जैसे वेजेस होता है, सैलरीज होता है, या 2-3 चीजें होती हैं. उसके बाद लीकेजेस को देखना पड़ता है हमें. उसके बाद प्रॉफिट्स हो गया. प्रॉफिट्स के भी 3 हिस्से आते हैं. रिटेन अर्निंग्स होता है, डिविडेंड होता है, और जो भी कॉर्पोरेशन टैक्स होता है, ये प्रॉफिट्स के 3 हिस्से आते हैं. फिर रेंटल इनकम हो गया. तो दिस इज समथिंग जो सबसे इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड, इसलिए ये हम पहले पढ़ते हैं. और आई मीन ये ड्राइव करने में भी आसान होता है, पढ़ाना भी और पढ़ना भी, आई थिंक. यस, एब्सोल्युटली. सो आयुष, 1-2 क्वेश्चंस है, क्विकली ले लेते हैं. धनश्री का क्वेश्चन है, इन केस ऑफ जी गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, इफ वी आर बोरोइंग मनी फ्रॉम अदर कंट्रीज, इज इट स्टिल इंक्लूडेड इन जीडीपी? Ayush, your take on that, then I'll quickly put my pointer. So borrowing से definitely, I think जैसे तुम एक फिगर ही पढ़ते हुए कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो 3% या 4% का जीडीपी होना चाहिए. तो वो आई मीन बोरिंग्स होते हैं, वो खुद पे इन्वेस्ट होता है. तो बोरिंग्स जो हो रहा है, मतलब that is calculated in the calculation of GDP. Yes. So धनश्री, देखो, इसको बहुत सिंपल तरीके से समझो. ठीक है, मैंने लोन लिया. ठीक है, मैंने लोन लिया मान लो बैंक से, क्या वो मेरा एक्सपेंस है? जब वो बेसिकली जब मैंने लोन ले लिया, ठीक है, उसी समय वो जी का हिस्सा नहीं होगा यहाँ पे. ठीक है, जब आपने बोरोइंग करा, फिर अगर आपने उसको एक्सपेंड कर दिया, ठीक है, आपने कहीं से भी पैसा लाया हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग हो रही है, अगर गवर्नमेंट कुछ भी खरीद रहा है, गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दे रहा है, जो भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ जी. आई होप दैट इज वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी क्लियर, नो कंफ्यूजन देयर. ठीक है, आप कहां से पैसा लेके आ रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. सो प्रैक्टिकली क्या वो जीडीपी का हिस्सा बना? यस, प्रैक्टिकली वो जीडीपी का हिस्सा बनता है. ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप बोरिंग कर रहे हो तो आप उसको एक्सपेंड करोगे, बट आप जितना एक्सपेंड करोगे उतना ही आपके जीडीपी में ऐड होता है. ठीक है, चेतन इज सेइंग सेल्फ कंजम्पशन इज इंक्लूडेड इन जीडीपी और नॉट.
चेतन, ये जो सी जो कंपोनेंट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारा सेल्फ कंजम्पशन, ये हमारा प्राइवेट कंजम्पशन है, यही आपका सी के अंदर आता है। आई होप द आर द कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी क्लियर टू एवरीवन? सो आपका यस आयुष, जो चेतन का जो क्वेश्चन है, आई थिंक वो बोल रहा है कि देयर इज अ फार्मर, ठीक है, तो ही इज प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, उसमें वो 80 सेल कर रहा है, 20 खुद के लिए रख रहा है, तो ही इज ट्राइंग टू आस्क वेदर दैट कंपोनेंट इज इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। इज इट व्हाट यू आर आस्किंग? जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह जो बनाते हैं खुद की कंजम्पशन पे, तो yes. या तो द आंसर इज यस, क्योंकि सेल्फ कंजम्पशन भी एक तरह का कंजम्पशन ही है। मतलब अगर तुम बना के खुद कंज्यूम कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो तुम किसी से खरीदते ही, सो दिस इज अ पार्ट, दिस इज इंक्लूडेड इन, क्योंकि वो तुम्हारा प्रोडक्ट ही है ना, मतलब करेक्ट। सो एब्सोल्युटली बिल्कुल करेक्ट बोला आयुष ने, ठीक है। अगर आप वो खुद नहीं लेते तो आप खरीदते, सो एनीवेज आप उसको एक्सपेंडिचर में आप उसको लोगे, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू, ठीक है। तो ये आपका हो गया बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ जीडीपी। द आइडिया इज टू प्रमोट and to encourage you all to go into greater details and find more, study more, just to give you a quick base on which you can build from here on. So I hope some basic understanding of GDP is clear to you. Now let me present you some important charts, which you can start reading from here on, till whenever you want to do in your corporate life, and will help you to understand GDP better. Okay, so just to add yes one two points. Yes, so just that we have discussed ki what are the components which are included in the calculation of GDP. So kabhi I mean aisa bhi hota hai, there are certain things, there are certain transactions which are not calculated in the computation of which are not included in the computation of GDP. सबसे पहला हो गया कि जो input goods होते हैं ना, intermediate goods, वो that is not included in the calculation of GDP. The only problem is कि double counting हो जाता है कि वो absolutely. if I am taking, अगर मैं suppose मैं sweets seller हूँ, तो I am taking milk from someone and I am using my R&D and everything resources to transform it into sweets. So दूध का जो cost है वो already मिठाई के cost में included है, तो जो ultimately जो final product होता है ना, तो उसका ही value is included in the calculation of GDP. सेकेंड इज सेकेंड हैंड गुड्स का भी बहुत बार सवाल आता है कि अगर मेरे पास लैपटॉप है या फोन है, आई हैव सोल्ड इट फॉर टू माय फ्रेंड in an exchange of suppose 10,000 rupees, तो is it contributing towards the GDP? The answer is no, क्योंकि वो एक बार already आ चुका है, I mean उसका calculation already एक बार हो चुका है, so second hand transaction नहीं होता है calculation में. Production of self consumption, as we discussed earlier, कि self consumption is included, very well included in the GDP. और जो स्टॉक इन ट्रेड होता है, जो इन्वेंट्री और जो रॉ मटेरियल्स होता है हमारे पास टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, दैट इज आल्सो टेकन इनटू अकाउंट. सो ये दो चार चीजें जो कभी-कभी मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं लोग. नहीं, आई थिंक आयुष वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, एंड गाइस ये जो पॉइंटर्स आपको आयुष बताते जा रहा है बीच बीच में, आप प्लीज इसको नोट करते जाइए, क्योंकि आपको क्वेश्चंस इसी टाइप के आएंगे, ठीक है. कई बार इंटरव्यूज में यही क्वेश्चंस आते हैं कि सेकंड हैंड ट्रांजैक्शन है, आप उसको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे जीडीपी के अंदर, है ना. जो आपके इनपुट ट्रांजैक्शंस हैं उनको आप कंसिडर करोगे कि नहीं करोगे, तो वो ये आपको समझना पड़ेगा. अब इसके अंदर हर्ष ने बोला कि अगर मैं सेकंड हैंड में कुछ ऐड ऑन करके वापस बेच रहे हैं तो देन डू वी कंसीडर इट. हर्ष, जब भी आप नया वैल्यू ऐड कर रहे हो इट विल बी काउंटेड, ठीक है. आप जब भी नया वैल्यू ऐड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मान लो जैसे जैसे मान लो मैंने लेट्स से किसी से कार खरीदा और मैंने हवाई जहाज बना दिया उसको, ठीक है. वेरी वेरी बैड एग्जांपल आई नो, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया. बाइक मॉडिफिकेशन एक आप एग्जांपल दे सकते हो. हाँ, जैसे बहुत लोग बाइक मॉडिफाई कराते हैं. एग्जैक्टली. तो फॉर एग्जांपल जैसे बाइक तुमने एक सेकंड हैंड खरीदी, फिर तुमने उसको मॉडिफाई करवा दिया, तो जो मॉडिफिकेशन की वजह से जो नेट वैल्यू क्रिएट हो रहा है वो तुम्हारा जीडीपी में जाएगा. बट सेकंड हैंड पे जब तुमने खरीदा उसको, वैल्यू जब सेकंड हैंड में तुमने उसको खरीदा, वो पार्ट काउंट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी एक इनिशियल प्राइस पे वो बाइक बिक चुकी है. आई होप दैट पार्ट इज क्लियर टू यू, है ना. तो दैट पार्ट विल नॉट बी कंसिडर, बट जब भी आप कोई वैल्यू ऐड करोगे that part will be counted as part of your GDP, ठीक है. अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसको हमको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए, which is called gross value added. इसी के बारे में आयुष ने बात करी है अभी, ठीक है. तो ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या है
कि जो भी आपका फाइनल प्रोडक्ट का वैल्यू है, ओके, दैट गोज इनटू द जीडीपी। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आई हैड फ्लोर से आई मेड ब्रेड, ओके, ब्रेड से आई मेड केक, ओके। तो अगर मैंने यहाँ पे फ्लोर लिया है, यहाँ पे फ्लोर से मैंने ब्रेड बनाया, फिर मैंने केक बना दिया यहाँ से, तो अगर मैं फ्लोर की भी वैल्यू काउंट करूं, मैं इसकी भी वैल्यू काउंट करूं, मैं इसकी भी वैल्यू काउंट करूं, ठीक है, इंडिविजुअली अगर मैं तीनों को काउंट कर लूं, तो क्या ये सही तरीका है जीडीपी कैलकुलेट करने का? Is this the right way to do it? The answer is absolutely no. You don't calculate GDP that way. What you will do is final product का जो value है, ठीक है, आप इसको ही सीधा ले लो, इसको ही आप सीधा उठा के काउंट कर लो, इसका वैल्यू that will be your GVA, ठीक है। GVA क्या हो गया? ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब ग्रॉस वैल्यू एडेड के अंदर क्या होता है, आपके टैक्सेस भी लगते हैं, है ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो वो जो टैक्सेस होते हैं उनको भी आप ऐड करोगे। क्यों? क्योंकि ये भी तो टैक्स जा रहा है सरकार के पास, सरकार उसको यूज करके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रहा है। तो इसके ऊपर जब आपका इनडायरेक्ट टैक्स, अभी ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हो गए, ये आपके हो गए इनडायरेक्ट टैक्सेस। सबसे पहले तो आई होप सबको पता है इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है। इकोनॉमिक्स वाले सेशन में हमने सीखा था डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। अभी इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। सब्सिडीज क्या होती हैं? अनुवृत्तियां। अनुवृत्तियां क्या होती हैं? सब्सिडीज बेसिकली जो सरकार कुछ आर्टिकल्स को किसी सेक्टर को या किसी समुदाय को, किसी पॉपुलेशन को एनेबल करने के लिए जो अमाउंट प्रोवाइड करती है उसको हम सब्सिडीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस नेट क्या हो गया, जो आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं गुड्स के सेल पे, उसमें से जो हम सब्सिडीज अगर निकाल देंगे तो हमारा नेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस बन जाएगा। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड में जब आप नेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करोगे तो आपका जीडीपी नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप आउटपुट और एक्सपेंडिचर मेथड को कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपको चार्ट्स में जब दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से ये समझ में आएगा। उसके पहले आयुष, देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम काजल, saying only added value cost will be counted or the entire final product, as in bike example, the additional cost will be counted or additional expense and the initial cost together. So Ayush, will you want to take that? So the logic is very clear. If you take the summation of the value which all the the channel is creating, it will lead to the Final value of the product. Yeah, absolutely. So, वही बहुत सिंपल लॉजिक है कि देयर आर थ्री चैनल पार्टनर्स। अगर दूध वाला है, देयर इज अ मैन्युफैक्चरर एंड बाद में एक रिटेलर है सब, या फिर कोई तीन चैनल। कौन सा एग्जांपल ले लूं? मैं ये वाला एग्जांपल दे देता हूँ आयुष, वेरी वेरी सिंपल। लेट मी गिव यू वन स्मॉल एग्जांपल। मान लो जैसे तुम्हारा इस एग्जांपल, ये जो फ्लोर ब्रेड और केक वाला एग्जांपल है, जैसे तुम्हारा फ्लोर मान लो 10 रुपए का है, ठीक है, तुमने उसको ब्रेड में कन्वर्ट किया, वैल्यू इंक्रीज हो गया, अब इसका वैल्यू हो गया 15। तुमने यहाँ पे कितना वैल्यू ऐड किया है? तुमने यहाँ +5 ऐड किया है ना। फिर तुमने इसको केक में कन्वर्ट कर दिया, मान लो इसका वैल्यू हो गया 20 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से वैल्यू कितना ऐड हुआ है? +5। तो अब या तो आप 10 + 5 ले लो, अगर आप इनपुट साइड से करना चाहते हो तो आप फ्लोर का कॉस्ट प्लस वैल्यू एडिशन एट द फर्स्ट लेवल, वैल्यू एडिशन एट द सेकंड लेवल, या तो आप ये ले लो 10 + 5 + 5, या आप सीधे केक का फाइनल वैल्यू ले लो विच इज 20। बोथ वेज आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि जीडीपी में आप सेम ही नंबर काउंट कर रहे हो। आई होप द मैथमेटिक्स इज क्लियर। Ayush, anything else? Anything you would want to add? Very well explained. I think it covers everything. And please listen to this lecture properly, because this will help you in your tax ka paper also, which you will be studying in MBA. Yeah. I remember. Tax के point of view से पढ़ना पड़ेगा. Yes. So ये मैंने काफी चीजें जो मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ, ये मैंने MBA के अंदर जाके सीखा from the best minds of the country, from the top academicians and top teachers of the country. So I am just giving you some value add here. Okay. हर्ष सिंह, अभी पैंडेमिक हुआ, जो एड दिए हैं उसको भी सब्ट्रैक्ट कर, बेसिकली जो भी तुम्हारा सब्सिडीज हो जाएगा, ठीक है, वो आपका यहाँ से कटेगा, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से वो निकल जाएगा, ठीक है, और फिर ये आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा।
ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा चार्ट्स दिखाता हूं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, बहुत सारे डाउट्स आपके दिमाग में जो है वो क्लियर हो जाएंगे। लेट मी टेक यू टू द चार्ट्स। ठीक है, सबसे पहले लेट मी आस्क यू, यू नो, Dhanashri is saying, in real practice, I'm curious to know how government practically tracks this. Say in flour to bread example, like how do you track which flour added in cake or which flour is used directly? Dhanashri, इसके ये बहुत interesting question है. Ayush, would you want to take it first? I mean, wait, just in real practice, I think there is a very huge R&D which goes into it, and there are a lot of people involved जो इसका track रखते हैं. And I think ये most of the time sector wise होता है. I think cake का example जो दिया है, that is a very वो हम जैसे cake it comes into a bakery industry, right? तो वो I guess वो industry related होता है, मतलब कभी मैंने भी इतना thought दिया नहीं है इस पे तो. So I'll come to this. Dhanashri, देखो, understand, ठीक है, जो हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं या जो गवर्नमेंट जीडीपी कैलकुलेट करती है, सबसे पहले तो you know, do you guys know about MOSPI? How many of you have heard of MOSPI? कितने लोगों ने MOSPI के बारे में सुना है? Anyone who's heard of MOSPI? कभी नाम सुना हो बचपन में या पढ़ाई करते हुए? What is MOSPI? क्या है MOSPI? कोई जल्दी से बताओ चैट के अंदर. You know, is so MOSPI आपका, जो आपने सुना होगा कि जितने भी एस्टिमेट्स होते हैं, you know, जीडीपी के, ये सब MOSPI ही देता है. तो बेसिकली मतलब क्या है MOSPI का? तो अगर आप नहीं जानते हैं, so basically this is Ministry of Statistics Program Implementation. This body is basically responsible for releasing your GDP estimates. तो वो क्या करते हैं, वो जीडीपी का एस्टिमेट्स निकालते हैं और वो देते हैं. ठीक है, प्रोविजनल एस्टिमेट्स, एडवांस एस्टिमेट्स, रिवाइज एस्टिमेट्स. तो सबसे पहले जैसे अभी 7 जनवरी को आपका एडवांस एस्टिमेट आया है कि इस साल जीडीपी क्या होने वाला है, क्या ग्रोथ होने वाला है एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर. ठीक है, फिर से आपका एक और आएगा प्रोविजनल एस्टिमेट 31 मई के आसपास, और फिर बाद में जब सब कुछ यू नो रिकंसाइल हो जाएगा तो आपका फाइनली रिवाइज एस्टिमेट्स आता है ना. तो ये आपका जो क्वेश्चन था धनश्री, कि ये तो काफी ट्रिकी लग रहा है इसको कैलकुलेट करना, तो इसको फाइनल वैल्यू पे इसीलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्योंकि फाइनल वैल्यू पे कैलकुलेट करना इज इजियर. ठीक है, ऑल्दो इसको यहाँ पे ट्रैक करना और इस ट्रैक के बीच में ये कभी कभी मिस भी हो जाता है. ठीक है, आई एम श्योर यू हर्ड ऑफ इनफॉर्मल इकोनॉमी ऑल्सो, कि जैसे आपने सुना होगा कि जैसे हमारा एक फॉर्मल इकोनॉमी है और पैरेलल हमारा एक इनफॉर्मल इकोनॉमी भी चलता है. कुछ इंपॉर्टेंट आप अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से कुछ सेक्टर्स आप देखो, जैसे टाइल्स, सैनिटरी वेयर एंड फॉसेट्स, अगर आप में से कोई भी इस सेक्टर के बारे में जानता हो तो ये सेक्टर 50% आपका इनफॉर्मल है. तो ये जो 50% इनफॉर्मल है, ये जीडीपी का हिस्सा बनता है. आप इसको ट्रैक कर पाओगे? द आंसर इज नो. तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लीकेजेस होते हैं, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, जिसका ट्रैक करना बहुत डिफिकल्ट होता है. जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं थियोरिटिकल लेवल पे कैलकुलेशन होता कैसे है. ठीक है, दैट वी आर कैलकुलेटिंग एंड हेंस वी आर टेलिंग यू कि अगर आप फाइनल लेवल पे कैलकुलेशन ले लो और उसके ऊपर आप उसमें इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर दो तो आपका वो जीडीपी कैलकुलेशन हो जाएगा. ठीक है, तो ये थियोरेटिकल है, इसमें बहुत सारे लीकेजेस होते हैं. जब आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कोई आपसे बोल दे कि एग्जैक्ट जीडीपी बता दो, नहीं है पॉसिबल. एग्जैक्ट जीडीपी कैलकुलेशन होता ही नहीं. ठीक है, जो जीडीपी कैलकुलेशन होते हैं, इतने सारे एस्टिमेट्स आते हैं, एडवांस एस्टिमेट, फिर प्रोविजनल एस्टिमेट, उसके बाद रिवाइज एस्टिमेट. इतने सारे एस्टिमेट्स क्यों आते हैं? बिकॉज एग्जैक्ट कैलकुलेट करना किसी के लिए बस की बात नहीं है. ठीक है, तो ये जो आपको आइडिया हम दे रहे हैं थियोरेटिकल लेवल पे, कुछ आपको चार्ट्स भी दिखाएंगे जो मॉस्पी ने कैलकुलेट करे हैं हमारे लिए. आइए उसको देखते हैं. सबसे पहले टू गिव यू ऑल अ वेरी गुड पिक्चर. ठीक है, तो ये है आपका जीडीपी फॉर द ईयर FY21. सो FY21 के लिए जो आपका चार्ट्स है जो मॉस्पी ने शेयर किया, मॉस्पी के जो रिपोर्ट्स हैं लास्ट ईयर के और इस ईयर के, ये भी हम आपके ग्रुप पे शेयर करेंगे. 7-8 पेजर होता है. गो थ्रू दैट, इट विल गिव यू अ वेरी गुड आइडिया, understanding of what the GDP is, what are the components and how to go about reading it. ठीक है, अदरवाइज हम क्या करते हैं, विकिपीडिया पे जाके पढ़ लेते हैं. तो दैट डज नॉट गिव यू अ गुड पिक्चर ऑफ यू नो हाउ द जीडीपी इज कैलकुलेटेड. अब यहाँ देखते हैं, इस चार्ट को समझते हैं. ठीक है, तो हमने क्या सीखा था उसको अब अप्लाई करेंगे. ठीक है, हमने क्या सीखा था, हमने जो सीखा था उसको अप्लाई करते हैं. तो हमने देखा कि आपका जो ग्रॉस वैल्यू, अब यहाँ देखो एट 2011-12, ये क्या है, ये आपका बेस ईयर हो गया. ठीक है, बेस ईयर क्या है, अभी
आपका 2011-12 अभी फिर से ये बेस रिवाइज होने वाला है, ठीक है। तो आप अभी बहुत इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन आपको इसके ऊपर आ सकता है पीआई में कि अगला बेस ईयर क्या होना चाहिए। बीच में कोविड आ गया, बहुत सारी चीजें डिस्टॉर्ट हो गई, है ना। तो आप किसी भी बेस ईयर किसको लेना चाहोगे? आप उस ईयर को लेना चाहोगे जो एक नॉर्मल ईयर हो, जिसमें ऑपरेशंस नॉर्मली करे गए हो। तो 2011-12 के करस्पॉन्डिंग क्या हम 21-22 को ले सकते हैं या हम 2021 को ले सकते हैं? कौन सा ईयर बेस ईयर होगा, इसके ऊपर भी काफी डिबेट्स होंगे, है ना। और ये आपसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, है ना। सो नाउ तो ये देखो आप करंट, ये आपका 2011-12 के बेसिस में। तो ये जो जीडीपी कैलकुलेशन होगा, ये कौन सा होगा? रियल जीडीपी होगा कि नॉमिनल जीडीपी होगा? दिस जीडीपी विल बी योर रियल जीडीपी। तो जब भी आप बेस ईयर के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा रियल जीडीपी। तो अब देखते हैं कैलकुलेशन क्या हो रहा है चार्ट्स में। जीवीए एट बेसिक प्राइसेस, जो आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड है फॉर द ईयर FY21, यहाँ पे क्या है? व्हाट इज पी? पी इज प्रोविजनल एस्टिमेट्स। कब आता है? ये आपका एंड ऑफ मई में आता है, ठीक है। तो अब ये देखते हैं आपका ये जो नंबर है कितना बन रहा है। यहाँ पे ये रुपीज इन करोड़ है ना। तो ये आपका 124 लाख करोड़ रुपीस हो गया ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है। इसके ऊपर नेट ऑफ टैक्सेस आप ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा जीडीपी। अच्छा, अब जीडीपी के नीचे एक और चीज लिखा हुआ है एनडीपी। आयुष ने पहले ही इसके ऊपर एक थोड़ा सा आइडिया दे दिया हो आपको, ठीक है। तो ये क्या है? व्हाट इज एनडीपी? आयुष, वुड यू वांट टू टेक एनडीपी, गिव अस अ ब्रीफ ऑफ व्हाट एनडीपी इज? Oh yeah, so जैसे we have already we are जैसे मैंने बताया कि GNP तक हम लोग समझ चुके थे। तो GDP से since I told you related aggregates है, एक दो आइटम प्लस माइनस करते हैं and we get a new measure. So NDP is basically ग्रॉस और नेट का डिफरेंस होता है। तो GDP से अगर हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो वो NDP आ जाता है। तो डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या होता है कि I mean जो हमारे पास इतने एसेट्स हैं, इतने कैपिटल गुड्स है थ्रू आउट द इकोनॉमी, तो उन सब का वियर एंड टियर भी होता है थ्रू आउट द ईयर, एंड वो बहुत बड़ा वैल्यू होता है। डेप्रिसिएशन का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। तो वो डेप्रिसिएटेड वैल्यू को हम माइनस करते हैं और फिर हम लोग एक एनडीपी के फिगर पे आते हैं। क्योंकि इसलिए माइनस करना पड़ता है बिकॉज द sheer volume of assets owned by us, the machinery owned by the industries and the capital goods, everything. So depreciation का अकाउंट करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इतना बड़ा जीडीपी होता है तो डेप्रिसिएशन भी बहुत बड़ा होता है। एब्सोल्युटली। सो ये जो डिप्रिसिएशन आप देखो यहाँ पे सीधे सीधे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 135 लाख करोड़ है और यहाँ पे 118 लाख करोड़ है। डिफरेंस सीधा सीधा आप अगर नेट कैलकुलेट करो देखोगे 16-17 लाख करोड़ का आपका खाली डिप्रिसिएशन हो रहा है, ठीक है। सो इट्स अ बिग नंबर एंड यू मस्ट टेक इट इनटू अकाउंट। अंकित इज सेइंग डिप्रिसिएशन वैल्यू इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अंकित, वैल्यू तो पॉजिटिव ही होता है लेकिन उसका ट्रीटमेंट नेगेटिव होता है। बेसिकली आपके जीडीपी में से आप उसको निकाल देते हो। क्यों निकाल देते हो? क्योंकि आपका वो अमाउंट वेयर एंड टेयर, ठीक है, जो आपके जो कैपिटल गुड्स हैं उनके वेयर एंड टेयर में निकल गए, ठीक है। तो वो आप उसमें से बेसिकली कैश कंपोनेंट नहीं होता है। इट्स नॉट अ कैश कंपोनेंट कि मेरे पास 100 रुपए आया, कोई मेरे से 12 रुपए लेके चला गया, ठीक है, क्योंकि बोला तुम्हारा तो डिप्रिसिएशन हो गया 12 रुपए दे दो। ऐसा नहीं है। ये बेसिकली एक प्रोविजन जैसा होता है, या आप इसको ऐसे समझो कि आपको यू हैव टू टेक इट इनटू अकाउंट बिकॉज सारे जो आपके कैपिटल एसेट्स हैं, जो भी आपके एसेट्स जितने सारे हैं, उन सारे एसेट्स का एक यूजफुल लाइफ होता है, ठीक है। आपको उसके ऊपर और इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, मशीन्स हैं, फैक्ट्रीज हैं। तो वो जो अमाउंट आपका हर साल आप उसके अगेंस्ट में निकालते रहते हो अपने जीडीपी से, क्योंकि मेरे को 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद जो यूजफुल लाइफ है मेरे मशीन की, उसके बाद मेरे को उसको वापस से या तो फिर से खरीदना पड़ेगा या मेरे को रिपेयर एंड मेंटेनेंस करना पड़ेगा, है ना। अच्छा, वही चीज है कि जैसे अगर कोई असेट है, सपोज कार है, तो उसका लाइफ सपोज 10 years है, तो सपोज 2 लाख की कार है, 2 और 10 साल के बाद वो कार मेरे यूज की नहीं होगी, तो फिर अब मेरे को नया कार लेना होगा तो मैं एक साथ पैसे कैसे लाऊंगा? तो हम लोग ऐसे कंसेप्ट समझ सकते हैं कि एवरी ईयर हम 20-20 हजार अलग करके रखते जा रहे हैं उसके लिए, एंड जब 10 साल खत्म हो जाता है तो हमारे पास एक कॉर्पस होता है। ये सब प्रोविजन ऑफ ये सब पढ़ोगे, अकाउंटिंग फाइनेंस में पढ़ोगे, बट ये एक तरह से मान के चलो कि ये एक तरह का बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेंडिचर होता है। इसको नॉन कैश एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एक्सपेंडिचर है हमारे पीएनएल में, बट वो नॉन कैश है, मतलब देयर इज नो आउटफ्लो ऑफ मनी।
तो Absolutely. इस तरह से ये क्वेश्चंस पूछते हैं कभी कभी इंटरव्यूज में और फाइनेंस के पेपर तुम पढ़ोगे तो ये काफी हेल्पफुल है ये इन्फॉर्मेशन। Correct. Kajal is saying deficit also includes the loan taken from other country. Ayush, would you want to take it? So Kajal, yeah, Ayush. एक सेकेंड, डेफिसिट तब होता है जब हमारा जो अर्निंग्स होता है वो एक्सपेंडिचर से कम होता है, तो हमारा एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है और डेफिसिट आई मीन और इनकम कम है, तो वो डेफिसिट कहलाता है। तो इनकम में मतलब लोन, हाँ, जब डेफिसिट होता है तब हमें फॉरेन अब्रॉड बोरिंग्स करनी होती है कभी कभी। Yes. तो So लॉजिक होता है। yes. Kajal, आप to give you an idea, थोड़ा सा unrelated problem है ये। I will request you कि जो दो हमने इकोनॉमिक्स वाले सेशन करे एक बार आप उसको अच्छे से देखो, that will give you a very good picture of that। ठीक है, हम भी subsequent sessions में ये सारे नॉलेज को कंबाइन करेंगे and that will really help you। अच्छा, अब आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपने देखा, तो ये क्या है, ये आपका आउटपुट मेथड ऑफ कैलकुलेशन है ना, ये आपका आउटपुट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। अब देखो सेम चीज, आप देखो सेम चीज आपका यहाँ पे देखो एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट किया है ना। यहाँ पे देखो ये जो देख रहे हो आप, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसी को हम सी बोलते हैं, है ना, हमने देखा था ना सी। फिर हमने देखा यहाँ पे देखो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम जी बोलते हैं। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक्स, ये जो छोटे छोटे ये जो कंपोनेंट्स है, जैसे चेंज इन स्टॉक्स हो गया, वैल्यूएबल्स हो गया, ये सब बहुत छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, तो इसको हम ज्यादा भाव नहीं देते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका आई हो गया। ठीक है, और ये देखो नेट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ये क्या हो गया, एक्स हो गया। ये जो आपके कंपोनेंट्स हैं, सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, ये आपका हो जा रहा है यहाँ पर जीडीपी कैलकुलेशन फ्रॉम द एक्सपेंडिचर एंगल। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब इसके अंदर पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड क्या है, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ये देखिए आपका जो सी का कंपोनेंट कितना बड़ा है। ठीक है, आप देखो आपके जीडीपी को कौन चला रहा है, व्हाट आर द ड्राइवर्स ऑफ योर जीडीपी, योर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन विच इज योर प्राइवेट कंजम्पशन। ठीक है, एक तो ये हो गया, और ये क्या है आपका, ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। तो आपके एक हमने जो कंपोनेंट्स देखे, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, इसके अंदर जो मेजर लीवर्स हैं वो कौन कौन से हैं, आपका सी और आई आपके मेजर लीवर्स हैं आपके जीडीपी के। तो जीडीपी को अगर आपको लेट्स से जो बड़े वाले लीवर्स हैं जो आपके जीडीपी को संभाल के रखे हुए हैं, सी एंड आई, लेट्स हैव अ लुक एट इट फ्रॉम अनदर एंगल। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ध्यान से, तो आप देख सकते हो रेट्स टू जीडीपी। रेट्स टू जीडीपी का क्या मतलब हुआ, रेट्स टू जीडीपी का मतलब हुआ कि जो आपके परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो आपका प्राइवेट कंजम्पशन है वही 56% कॉन्ट्रीब्यूट करता है आपके जीडीपी को। ठीक है, और उसके अलावा आपका जो आपका ये इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट है वो 31। तो बेसिकली आपका 87-88%, मतलब नेट आप लगा लो 90% तो पूरा आपका प्राइवेट एक्सपेंडिचर और आपका इन्वेस्टमेंट से ही आ रहा है। बाकी सब तो छोटे छोटे बातें हैं, वो कहने के लिए है। ठीक है, बट मेजर आपके इकोनॉमी के ड्राइवर्स कौन से हैं, ये आपके इकोनॉमी के ड्राइवर्स हैं। ठीक है, तो ये अगर आपसे कोई पूछे कि कैसे आप इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर सकते हो, तो ये आपके मेजर एरियाज हैं, है ना, जहां पे थोड़ी सी भी दिक्कत होगी, ऊपर नीचे होगी, आपका जीडीपी जाएगा फॉर अ टॉस। ठीक है, यहाँ पे अब जैसे फॉर एग्जांपल कोविड का टाइम हुआ था, तो कोविड के टाइम पे क्या हुआ, आपका बहुत सारे लोग फ्रॉम मिडिल क्लास दे वेंट टू बिलो पॉवर्टी। तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, उसके अंदर आपका प्राइवेट कंजम्पशन गिर जाएगा। आपका प्राइवेट कंजम्पशन गिर जाएगा तो आपका जीडीपी भी गिर जाएगा, जो हुआ भी था लास्ट ईयर में आपने देखा। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा कि हमारा जीडीपी लास्ट ईयर में 7.3% ईयर ऑन ईयर से कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये नंबर देख रहे हो आप यहाँ पे, दिस नंबर दैट यू सी हियर, basically this gives you the GDP contraction for the last financial year over the previous year. So over the previous year at the base prices of 2011-12 there was a contraction of 7.3% in your GDP. तो ये था आपका लास्ट ईयर का हिसाब, एंड आई होप
gives you an idea as to how to read these charts जो आपके मॉस्पी के अंदर, जो आपके मॉस्पी के एस्टिमेट्स में आते हैं। ठीक है, और भी कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जो आप जितना आप इसके अंदर डिटेल में जाओगे आपको उतना मजा आएगा और आप बहुत कुछ सीखोगे। जैसे पर कैपिटा इनकम भी आप देख सकते हो यहाँ पे। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, वो आप अभी यहाँ पे करंट प्राइसेस पे भी देख सकते हो। तो लास्ट ईयर करंट प्राइसेस पे क्या था जीडीपी, लास्ट ईयर करंट प्राइसेस पे आपका 197 लाख करोड़ था। तो आपका नॉमिनल जीडीपी फॉर FY21 क्या था, 197 लाख करोड़। आपका रियल जीडीपी कितना था, 135 लाख करोड़। ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग पार्ट विच इज सेक्टोरल व्यू। सेक्टोरल व्यू बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि कौन से सेक्टर्स कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कैसे ग्रो कर रहे हैं। अब देखिए लास्ट ईयर एग्रीकल्चर कैसे ग्रो किया है, 3.6%। सारे के सारे सेक्टर्स की बैंड बजी पड़ी है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात आपको बता रहा हूं, 8.5% डी ग्रोथ इन माइनिंग एंड क्वारिंग। मैन्युफैक्चरिंग आपका बिग टाइम डी ग्रोथ 7.2%। इलेक्ट्रिसिटी, यूटिलिटीज वगैरह वगैरह, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था तो ऑब्वियसली बढ़ना ही था। ठीक है, सारी जनता फैन एसी सब घर पे चल रहा है, ऑफिस तो कोई जा नहीं रहा है, यहाँ पे ग्रोथ आपको दिखाई दे रहा है। कंस्ट्रक्शन ऑब्वियसली तो होना ही था। फिर आपका ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, आपको मालूम है ये सारी चीजें, रियल एस्टेट। तो आप देखो कि लास्ट ईयर एग्रीकल्चर ने आपको बचा लिया कुछ हद तक। ठीक है, एग्रीकल्चर डूबता तो पूरा का पूरा इकोनॉमी लास्ट ईयर तो वैसे भी 7.3% पे था, उसके बाद ये आपके एग्रीकल्चर ने आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर बचा लिया। अंकित सिंह, इज इट यूज्ड टू मैच जीडीपी कैलकुलेशन बाय आउटपुट मेथड एंड एक्सपेंस मेथड? अंकित, डिस्क्रिपेंसीज के बारे में आप पूछ रहे हो, बिल्कुल सही आपने बोला। डिस्क्रिपेंसीज में जो आपके यहाँ पे जो डिस्क्रिपेंसीज है ये बेसिकली ये आपको मैच करने में मदद करता है, बिकॉज एंड ऑफ द डे आपका जीडीपी नंबर क्या हो जाना चाहिए, सेम हो जाना चाहिए, है ना। तो ये आप देखो यहाँ पे जो नंबर आप देख रहे हो 197 लाख करोड़ और यहाँ पे 197 लाख करोड़, ये दोनों नंबर आपका सेम ही है ना। अंकित इज ऑल्सो सेइंग इवन दो स्ट्राइक्स हुए इंक्रीज्ड। भाई स्ट्राइक तो रास्ते पे हुए, कोई खेत में बैठ के स्ट्राइक थोड़ी कर रहा था। प्लस आपके लास्ट ईयर आप जो फार्म लॉज से कनेक्ट कर रहे हो, आई थिंक इट्स एन अमेजिंग अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज आप देखो लास्ट ईयर एग्रीकल्चर ने आपको बचा लिया और फार्म लॉज भी आ गए। डू यू गाइस थिंक ये कनेक्टेड है कि कुछ तो कॉन्स्पिरेसी चल रही है यहाँ पे कि एग्रीकल्चर ने आपको बचाया और यहाँ पे ही फिर से एग्रीकल्चर को भी थोड़ा और प्राइवेटाइज, ओपनिंग टू कॉर्पोरेट्स वाला एंगल लेके आ गए। कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे फिशी। ऑल राइट, सो Utsa is saying services include IT and commerce and there was growth in IT last year. So basically आपका अगर आप फॉर एग्जांपल ऐसे आप देखोगे तो ओवरऑल यही ग्रोथ है। ठीक है, ये नेट नंबर्स हैं। ठीक है, इसके अंदर आप ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं कि भाई रियल एस्टेट तो बहुत अच्छा कर रहा था, मेरे घर के बगल में 4 फ्लैट्स बिक गए, वैसे नहीं देखेंगे। ठीक है, आप नेट देखो नंबर्स में, ये नंबर्स हैं जो एस्टिमेट आपको मॉस्पी ने दिया है। ठीक है, एंड दिस इज द रिलायबल सोर्स, आपको यहीं से देखना है नंबर्स। अच्छा, अब वेरी इंटरेस्टिंग, लेट्स क्विकली कम टू दिस ईयर। इस साल का क्या चल रहा है, उसका एस्टिमेट मैं आपको जल्दी दिखा देता हूं। ठीक है, अब देखो इस साल का 7 जनवरी को मॉस्पी का एडवांस एस्टिमेट आया हुआ है। दिस इज द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट फॉर द ईयर FY22। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बन रहा है देखो, बहुत कुछ अच्छा पिक्चर बन रहा है। बेस फिर से वही 2011-12 प्राइसेस। यहाँ पे देखिए आपका जीडीपी बन रहा है 147 लाख करोड़। पहले कितना था, 135 लाख करोड़। यू रिमेम्बर, पहले बन रहा था 135 लाख करोड़। अब इस साल कितना बन रहा है, 147 लाख करोड़। ऑब्वियसली देयर विल बी चेंजेस टू दिस। ठीक है, ये एडवांस एस्टिमेट है, इसके अंदर फिर और सारे एक बार फिर से रिकंसिलिएशन होगा, वो आपका आएगा 31 मई को, जिसको आपको प्रोविजनल एस्टिमेट्स बोलते हैं, और फिर से उसके बाद फिर से रिवाइज एस्टिमेट आएगा, है ना। तो अभी जो दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है,
9.2% over last year. Is this a good number, bad number? You can comment in the chat. ये questions आपसे पूछे जा सकते हैं कि how is this year looking like? Obviously last year में हमारे पास 7.3% contraction था, तो ये contracted number के ऊपर का growth है. तो अगर आपको कैगर वाइज देखना हो तो आपको लास्ट टू लास्ट ईयर से देखना चाहिए, लास्ट टू लास्ट ईयर से क्या ग्रोथ आपको दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि 7.3% कॉन्ट्रैक्टेड नंबर के ऊपर 9.2% ग्रोथ देखना इज नॉट अ ह्यूज जंप, है ना. पहले आपने ह्यूज डी ग्रोथ किया है, फिर आपने एक अच्छा ग्रोथ यहाँ पर लिया है. आयुष, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? हाउ आर वी डूइंग दिस फाइनेंशियल ईयर? I mean, it is safe to say that we have sort of recovered from the, losses which we had last year, and we are still in the pandemic zone. And but what a trend which we have seen in that is a spike in the hiring, and you must be seeing a lot of placement reports right now that all the colleges have gotten record placements. So yeah, that is for sure that we are in a phase of recovering. And if we compare it with a year before, that is बहुत minor difference दिख रहा है. But again, as said earlier, कि अभी भी we are in a track. There are certain industries which needs focus right अभी भी थोड़ा सा. So I think it's a good enough number, but I assume it कि by the end जब हमारा real estimate जो आएगा, जैसे ये तो अभी anticipated है कि by the end of इतना we are doing, जब real estimate आएगा तो थोड़ा और better दिखेगा. But it is safe to say that कि हाँ, we are back on track. Absolutely good news coming in. All the people who are going into the MBA this year, good news for you. Companies आएंगे, placements अच्छे होंगे. Fingers crossed for that. हमारे दिमाग में तो वही चलता रहता है, right आयुष? So I think good news for us. ये जो numbers हैं, अच्छा अब nominal में देख लेते हैं. ये तो real हो गया. Nominal में क्या number दिख रहा है वो भी आप देख लो. ये आपसे numbers पूछे जाएंगे, ठीक है. आपसे ये numbers पूछे जाएंगे इंटरव्यू में कि nominal GDP क्या है, last year क्या था, इस साल का क्या बन रहा है, what is your estimate. आपको अपना estimate नहीं देना है, ठीक है. आपको मॉस्पी का ही एस्टिमेट दे देना है कि सर हमने मॉस्पी की रिपोर्ट पढ़ी है, ठीक है. मॉस्पी की रिपोर्ट के हिसाब से ऑलमोस्ट हमारा 9% का ग्रोथ बन रहा है ना, एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर. यू कैन रिमेंबर अप्रोक्सीमेट वैल्यूज अंकित. यू डोंट नीड टू रिमेंबर द एग्जैक्ट वैल्यूज. एग्जैक्ट वैल्यूज की कोई जरूरत नहीं है आपको, जस्ट अ रफ एस्टिमेट, दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल. अच्छा, नॉमिनल क्या बन रहा है देखिए. नॉमिनल बन रहा है आपका 232 लाख करोड़, ठीक है. नॉमिनल कितना था लास्ट ईयर? लास्ट ईयर नॉमिनल जीडीपी कितना था देखो. लास्ट ईयर का अगर हम देखें तो हमारा नॉमिनल जीडीपी कितना था? 197 लाख करोड़. 197 से आपका कितना बन गया यहाँ पे आपका बन जा रहा है 232 लाख करोड़, ठीक है. ऑल राइट, है ना. सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू, ठीक है. अब इसमें आप सेक्टर स्पेसिफिक बोल सकते हो, ठीक है. हर्ष विल गेट इनटू स्लाइटली ग्रेटर डिटेल्स इन द नेक्स्ट सेशन. अभी मैं आपको थोड़ा सा क्विकली जो सेक्टोरल जो व्यू है वो भी मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ. जो सेक्टोरल एस्टिमेट्स हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो. एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको यहाँ पे कनेक्ट कर लेना चाहिए, ये देखिए आपका नंबर, ये क्या नंबर दिख रहा है आपको? ये टोटल आपका जीवीए दिख रहा है ना, 135 लाख करोड़. अब ये देखो आपको सेम नंबर यहाँ पे दिखेगा, ठीक है. ये नंबर दिख रहा है आपको यहाँ पे 135 लाख करोड़ का नंबर दिख रहा है. ये देखिए आप यहाँ पे 135 लाख करोड़ आपको यहाँ पे दिख रहा है जीवीए. इसी में जब आपने नेट टैक्स ऐड किया तो जीडीपी बन गया. ये जो जीवीए है इसी का स्प्लिट आपको सेक्टर वाइज इस रिपोर्ट में मिल जाता है. ये देखिए तो कैसा रहा कैसा रहने वाला है इस साल डिफरेंट सेक्टर्स का परफॉर्मेंस, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, है ना. तो आप देखो यहाँ पे लास्ट ईयर 3.6% से एग्रीकल्चर ने ग्रो किया, इस साल भी 3.9% से एग्रीकल्चर ने ग्रो किया. अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि भाई किसान तो सारे धरने पे बैठे हुए थे. सब लोग नहीं बैठे हुए, ठीक है. किसान अगर धरने पे बैठ जाएंगे तो आपके घर पे खाना नहीं आएगा, ठीक है. आप खाना खा रहे हो इसका मतलब आप किसान काम कर रहे हैं, ठीक है. सो 3.9% आपका एग्रीकल्चर में ग्रोथ है यहाँ पर, ठीक है. अभी देखिए लास्ट ईयर बहुत सारे जो सेक्टर्स थे वो डी ग्रोथ में थे. यहाँ पे आपको ग्रोथ दिख रहा है, ठीक है. 14.3, 12.5, 8.5, 10.7, 11.9, ठीक है. ये 7 जनवरी को रिपोर्ट आई थी, ठीक है. और उसके बाद आने वाले कई दिनों तक 3, 4, 5 एक हफ्ते तक आपने देखा होगा
जिन जिन सेक्टर्स में प्रोजेक्टेड ग्रोथ ज्यादा था उन सेक्टर्स में डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट्स में भी इन्वेस्टमेंट बढ़े हैं। तो आप ये सब ट्रैक करो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। जब आप बी स्कूल के अंदर जाएंगे तो आप और ज्यादा इसको अच्छे से समझेंगे। फॉर नाउ दीज आर सम ऑफ द पॉइंटर्स विच वी वांटेड टू गिव यू so that you can start. I hope you are now comfortable reading the charts. As and when you will read more, you will get to understand more and more, है ना? You can see for yourself कि कौन से sectors में आपका कितना improvement दिखाई दे रहा है, this year. Okay, so guys, I hope we could give you some idea. I and Ayush will connect with you again because we have another session coming up. So we'll have to end this here, and we'll Harsh, your point into recovery also, we'll take it. That's part of our plan in the subsequent session. I hope you all enjoyed the session. Ayush, any parting thoughts before we let them go? Just Jitna, we were just trying to go through it once again. Whether you will be, I guess you'll be sharing the slides as well, right, to the participants. Sudhanshu? Yes. Yeah, We'll share this video. Yeah. So go through it once again. Try using non-conventional way of starting. As I told you, you can just Instagram में भी काफी कुछ पढ़ाई हो जाती है, just to tell you that. And yeah, all the best for your PIs and GDs, and let's see क्या होता है. We're happy to connect anytime after this. Absolutely. So Ayush and Ayush will be sharing, weekly, links and preparation blogs आप सबके लिए. Guys, हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि ना इकोनॉमी में IT में ऐसा हो गया होगा क्योंकि मेरी जॉब की लगी पड़ी है IT में, ठीक है, या लोग या बेसिकली फार्मर्स तो धरने पे बैठे हैं तो एजुकेशन सेक्टर तो खराब कर रहा होगा. ऐसी धारणाएं आप ना बनाएं. ओके, डोंट टेक सच इनपुट्स इनटू योर माइंड. देयरफॉर मैंने नंबर्स आपके सामने रख दिए हैं, आप इन नंबर्स को देखो, अब आप अपने व्यूज बनाओ. ठीक है, नाउ यू मेक योर व्यूज, यू डोंट मेक बेसलेस व्यूज. ओके, मेक योर व्यूज ऑन फैक्ट्स, on numbers. That is what we are presenting to you. I hope after this you will read all the MOSPI reports that will come. Okay, this one was to build some awareness as to how to understand the economy. It's the first step, and trust me, it will take you many sessions like this to understand the Indian economy. It's a vast topic in itself. और हम दोनों को भी बहुत ही कम पता है. ठीक है, हमें जो बेस्ट पता है वो हम अपने एंड से कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, आप हमसे भी ज्यादा अच्छा जाने, हमसे भी ज्यादा अच्छा आप इसके अंदर करें. That is what we will wish for. And thank you so much for joining in, guys. You've all been very amazing, and it has been really lovely interacting with you. I hope आपको थोड़ी basic understanding हम दे पाए होंगे, and we will take it ahead from here in the subsequent sessions. Thank you so much for joining. Thank you, Ayush, for joining in. Your inputs have been really valuable for the students and for me also. Thank you for having me here. Great learning experience always. And guys, just one more session, that don't just think that these are the topics which has been discussed today. कोई commerce वाला या eco वाला कोई पता होगा, या this is something which is very general and everyone should know it. हाँ, हमें थोड़ा terms ज़्यादा पहले से पता होता है, but these are the things जो सबको पता होना चाहिए, and it is not exclusively for people from commerce and eco background. वो लोग भी पढ़ते हैं, but वो लोग कुछ और पढ़ते हैं. मतलब it is not just the statistical figures and all that. So ये these are something जो सबको जानकारी रखना, मतलब everyone should have a clear understanding about this thing. Absolutely. So guys, thank you so much. ये बहुत सारी चीजें जो हमको लेट से पता चली, ये बहुत सारी चीजें जो मैंने MBA के अंदर सीखा था, I am sharing that with you all now. So I hope you get that advantage and you have an early start at it, and you can prepare really better. Thank you so much. God bless you all. I'll share. Shubham ने 2 बार PDF के बारे में पूछ लिया. Shubham, I'll definitely share on the group. Okay, and Ayush will also be part of our group. Ayush will be sharing PDFs and links on weekly basis. Please go through, and we are always here whenever you need our help and assistance. Thank you so much, guys. God bless you all. Take care. Keep happy. Keep learning. Bye-bye. All the best, guys. Bye-bye. Good night. Thanks, Ayush. Thank you so much, yaar. Yeah.